Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Today, scenario number 8 is a 12-year-old patient presents with fever, joint pain, and a history of sore throat. On examination, you note erythema marginatum and subcutaneous nodules. The Jones criteria are applied to assess the diagnosis. Which of the following major criteria, in conjunction with supporting evidence, is necessary to diagnose rheumatic fever in this patient? Prolonged PR interval on ECG, elevated anti-streptolizin O यानी कि ASO titer, positive blood cultures, or elevated C-reactive protein levels. So today the topic of our presentation is rheumatic heart disease. Basically rheumatic heart disease जो है, it comes under the heading of diseases of the heart valves, because this rheumatic heart disease is most commonly associated with the valvular disease of the heart that we encounter in our daily practice, whether it is mitral stenosis and some other forms of regurgitations, but most common is the mitral stenosis. So that's why it comes under the heading of the diseases of the heart valves. Why it is called rheumatic heart disease? Rheumatic is something to do with the joints, because in this disease, there is severe joint pain, there is polyarthritis in the patient. That's why it is termed to be rheumatic. And it involves the heart in the form of pancarditis, like it is pericarditis, myocarditis, and endocarditis. That is why it is termed as rheumatic heart disease. So main two findings in the patients are involvement of the joints and involvement of the heart. That is why it is known as rheumatic heart disease. It is classified into acute rheumatic fever and a chronic rheumatic heart disease, or we can say acute rheumatic heart disease and a chronic rheumatic heart disease. In the acute rheumatic fever, usually it affects the children and young adults between the ages of 5 and 15 years. This is a MCQ point, that is that what is the commonest age of presentation of the acute rheumatic fever? The commonest ages between 5 and 15 years. It is now rare in high-income countries. Not important to remember. Basically, there is use of the penicillin, antibiotics, and prompt treatment of the streptococcal infections. That's why it is less likely in the developed countries nowadays. What is the pathogenesis? Why does a infection that has actually affected the throat, what is the reason behind that it starts affecting the heart and it start affecting the joints? This is basically an immune mediated delayed response. So this is basically a immune mediated delayed response. बैक्टीरिया खुद जाकर वहां पर कोई इन्फेक्शन नहीं कर रहा. दिस इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज. ये एक पोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है. एक इन्फेक्शन हुआ, सोर थ्रोट हुआ पेशेंट को, उसमें जो स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बीटा हिमोलिटिक जो बैक्टीरियाज हैं, उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी, उन एंटीबॉडीज ने जाकर क्रॉस रिएक्ट किया with the cardiac myosin and sarcolemmal membrane proteins, which results in the manifestation of the rheumatic heart disease. Basically, ये भी आपका एक एमसीक्यू पॉइंट है कि जो बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है, वेदर इट इज ग्रुप ए और ग्रुप बी. सो इट इज अ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई एंड इट इज ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई. बीटा हिमोलिटिक है लेकिन ये है ग्रुप ए. यू हैव टू रिमेंबर दिस. What is the histology? In the histology, we find fibrinoid degeneration in the collagen of the connective tissues, and we can also find Ashkoff nodules. Ashkoff nodules क्या होते हैं? These are basically a pathognomonic of this rheumatic heart disease, and they are present in the heart. They are basically composed of multinucleated joint cells. What are Ashkoff bodies? These are joint cells that are surrounded by macrophages and T lymphocytes and are not seen until the subacute or chronic phase of the rheumatic carditis. So Ashkoff nodules आपको acute के अंदर नहीं मिलेंगे, ये subacute और chronic में मिलेंगे, क्योंकि वैसे भी जो granuloma formations होती हैं वो chronicity को represent करती हैं. तो Ashkoff nodule भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर sort of granuloma formation ही है कि आपके पास multinucleated joint cells हैं that are surrounded by the macrophages and T lymphocytes.
Now here we come towards the causes of the acute valve failure. Whenever it is involving the endocardium that actually comprises of the heart valves, it can result into aortic regurgitation, mitral regurgitation. Not basically these acute valve failure is not merely associated with the acute rheumatic fever. These are the general causes of valve failure. मतलब आपका एओर्टिक रिगर्जिटेशन अगर है तो हमने एओर्टिक डायसेक्शन पढ़ी है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन की कॉजेज में आप देख सकते हैं कि एओर्टिक डायसेक्शन है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। माइट्रल रिगर्जिटेशन में जो है मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद खासतौर पे जो हमने कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी थी कि एमआर होता है, तो वो पैपिलरी मसल रप्चर की वजह से होता है। Itself, infective endocarditis results in mitral regurgitation and rupture of cardi due to myxomatous degeneration. तो ये जो myxomatous degeneration है, this is a commonest cause of mitral regurgitation. This is a MCQ point. While when we come towards the mitral stenosis, then the commonest cause is rheumatic heart disease. This is again a MCQ point. कि mitral stenosis में important cause is rheumatic heart disease. Whenever you are asked about the cause of the mitral stenosis, first is rheumatic heart disease, second is rheumatic heart disease, and the third is rheumatic heart disease. Like मतलब कि ये होता ही ज्यादातर rheumatic heart disease की वजह से है. And then the most common cause of the mitral regurgitation is myxomatous degeneration. Then we have prosthetic valves जो implanted valves होते हैं, उसमें mechanical valves भी हैं, biological valves भी हैं. तो जो मैकेनिकल वेल्व्स हैं उनका फ्रैक्चर हो सकता है, जैमिंग हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है और उसकी डिसलोकेशन होती है। तो वेल्व की जो डिसलोकेशन है उसको हम डीहेसेंस बोलते हैं। जो बायोलॉजिकल वेल्व्स हैं उनमें डीजेनरेशन हो जाती है विद कस्ट टीयर, क्योंकि बायोलॉजिकल जो है ह्यूमन मेड होते हैं, जबकि मैकेनिकल वेल्व्स जो हैं ये आपके मेटालिक वेल्व्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनके अंदर ये फ्रैक्चर, जैमिंग और डीहेसेंस है। जबकि जो बायोलॉजिकल वेल्व्स हैं, बायो इज मींस लाइफ, ये लाइव टिश्यू के वेल्व्स होते हैं, तो उसमें डीजेनरेशन लीड्स टू द valve failure. Now, what are the principal causes of valve disease? Valve disease can present either in the form of valvular regurgitation, it can present in the form of valvular stenosis as well. So, अगर हम देखें valvular regurgitation in general, चाहे वो aortic valve की है, mitral valve की है, tricuspid valve की है या pulmonary valve की है, valve regurgitation congenital भी हो सकती है. It can be due to acute rheumatic carditis. It can be due to infective endocarditis. It can be due to cardiac failure. हमने जो valve regurgitation स्पेशली जो MR है पढ़ा है, ठीक है. और इसके अलावा valvular regurgitation, syphilitic aortitis, traumatic valve rupture, senile degeneration, damage to cardi and papillary muscle secondary to myocardial infarction most of the time. Then we come toward the valve stenosis. So again, valve stenosis can be congenital. It can be due to rheumatic carditis. It can be due to senile degeneration as well. यहाँ पर अगर आप देखें तो मेन रोमैटिक हार्ट डिजीज जो है या जो रोमैटिक फीवर है उसको ये पेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से सेंडेनहैम्स कोरिया होगा, जिसे हम सेंट वाइटिस डांस भी बोलते हैं. मैं इसकी वीडियो जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगी, उसको जरूर देखिएगा ताकि आप एक दफा देखें तो आप फर्स्ट लुक में ही पेशेंट को पहचान सकते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ रोमैटिक हार्ट डिजीज. देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ प्योर सोर थ्रोट. And then there is heart involvement in the form of pancarditis. Whenever I say that pancarditis mean it can involve the pericardium, then it will present as pericarditis. It will involve the myocardium, then the patient can have the features of myocarditis, and it can also involve the endocardium. In this, if it is involving the endocardium, patient can have valvular regurgitation or stenosis. ऑल राइट, हार्ट में जो है इट कैन ऑल्सो प्रेजेंट एज हार्ट ब्लॉक. सो इसी वजह से इनमें जो है हमें प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल भी मिलता है, जो कि इसका वन ऑफ द क्राइटेरिया भी है, माइनर क्राइटेरिया है. देन वी हैव सबकुटेनियस नोड्यूल्स. ये सबकुटेनियस नोड्यूल्स बिल्कुल रूमेटाइड नोड्यूल्स की तरह ही होते हैं, ये आपको बोन्स या टेंडन्स पे मिलेंगे. ठीक है,
इसके अलावा आपको फ्लिटिंग पॉलीआर्थराइटिस प्लस आर्थ्रल्गिया मिलेगा। ये फ्लिटिंग आर्थराइटिस इज अ माइग्रेटरी आर्थराइटिस, इसकी डिटेल्स हम यहाँ आर्थराइटिस में भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा अरिथमा मार्जिनेटम, मैंने अरिथमा मार्जिनेटम की एक पिक्चर लास्ट में दी हुई भी है। अरिथमा मार्जिनेटम को मार्जिनेटम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उसमें अरिथमा होता है, वो रेड होते हैं, रेज्ड होते हैं, बीच में उनकी क्लियरिंग होती है, इसको इसलिए इसको अरिथमा मार्जिनेटम बोलते हैं। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उनको पढ़ने से पहले इसका क्राइटेरिया जरा आप देख लें। ये चीज याद रखें कि रोमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर जो क्राइटेरिया है दैट इज अ जॉन्स क्राइटेरिया। इसको आप JR से याद रख सकते हैं, जूनियर रजिस्ट्रार, J फॉर जॉन्स क्राइटेरिया एंड R इज फॉर रोमेटिक हार्ट डिजीज। लेकिन जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का क्राइटेरिया है दैट इज ड्यूक्स क्राइटेरिया, उसको आप ID कार्ड से याद रख सकते हैं कि I फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड D फॉर ड्यूक्स क्राइटेरिया। तो अगर आपसे रोमेटिक हार्ट डिजीज का क्राइटेरिया पूछा जाए देन यू विल टेल अबाउट द जॉन्स क्राइटेरिया। इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो रही होती है, कोई ड्यूक्स क्राइटेरिया डाल रहा होता है, कोई जॉन्स, तो इसको जूनियर रजिस्ट्रार से याद रखें दैट जॉन्स क्राइटेरिया इज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द रोमेटिक फीवर। इट हैज थ्री थिंग्स, एक है उसकी मेजर मैनिफेस्टेशंस, फिर है उसकी माइनर मैनिफेस्टेशंस, एंड दिस इज अ प्लस थिंग कि आपके मेजर में से भी कुछ क्राइटेरियाज होंगे, माइनर में से भी कुछ क्राइटेरियाज होंगे, और ये होना मैंडेटरी है। व्हाट इज द मेजर मैनिफेस्टेशन, इसको जो है आप याद रखें through case, यानी कि C is for carditis, A is for arthritis, and C is again for chorea, and then you have the subcutaneous nodules, and E is for erythema marginatum. तो case से आप याद रख सकते हैं, इसमें C2 है, बाकी आपके सारे इसमें जो है मेजर क्राइटेरिया कवर हो जाएगा। Then you have the minor manifestation. Minor manifestation में you have fever, arthralgia, provided that arthritis is not in the major criteria, like patient is not having inflammation of the joint, not having swelling of the joint, only complaining of the pain. Then you have raised ESR or C-reactive protein, or there is previous rheumatic fever history. On CBC, there is leukocytosis and first degree atrioventricular block, first degree heart block भी इसका minor criteria में आता है, ठीक है। Major criteria 1, 2, 3, 4, 5, and minor criteria are 6. 5 major and 6 minor criteria. Patient में अगर more than or equal to 2 major criteria होंगे, you with this supporting evidence of preceding streptococcal infection, you diagnose the case of that. This is diagnostic of rheumatic heart disease. Say for example, patient is having only one major criteria, then you should have you should have greater than or equal to 2 minor criteria. Say for example, if the patient is having carditis, but the patient is also having arthralgia, and there is a first degree AV block on the ECG, or there is leukocytosis on the CBC, or the patient is having raised ESR or C reactive protein, ठीक है। तो अगर एक मेजर के साथ 2 माइनर हो, और इसमें भी अगेन आपके एक मेजर 2 माइनर के साथ प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का होना लाजमी है। There are few exceptions. हम पढ़ेंगे कि जहां पर if we don't have the preceding streptococcal infections, but there are certain findings that we get and we label the patient as having rheumatic heart disease. What are these? इसके जो है क्लिनिकल फीचर्स देखें, क्राइटेरिया अच्छे से याद करें, क्राइटेरिया एग्जाम में पूछते भी बहुत ज्यादा है और इससे MCQs भी आते हैं। तो जो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें वी हैव acute rheumatic fever. It is basically a multi-system disorders. You can see in the diagram, it is involving the heart, it is involving the joint, it is involving the skin. So they usually present with fever, anorexia, lethargy, and joint pain 2 to 3 weeks after an episode of streptococcal pharyngitis, although there may be no history of sore throat in some cases. सो यू डू ASO टाइटर, ठीक है। ASO टाइटर करते हैं आप, तो उस ये प्रीसीडिंग इन्फेक्शन पेशेंट हिस्ट्री नहीं देगा सोर थ्रोट की, लेकिन व्हेन यू डू ASO टाइटर दैट इज एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर जो अब आप करते हैं, दैट इज रेज, तो यू गेट द क्लू दैट पेशेंट हैड अ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. Arthritis occurs in approximately 75% of the patients. Other features these are described in this diagram. Using the revised Jones criteria, the diagnosis is based on 2 or more major manifestations,
or one major manifestation with two or more minor manifestation along with evidence of preceding streptococcal infection. Now, here it is important that a presumptive diagnosis of acute rheumatic fever can be made without evidence of preceding streptococcal infection in cases of isolated chorea or pancarditis. If the patient is having only patient presents with chorea only, you diagnose the patient as having rheumatic heart disease, or if the patient has pancarditis in the form of endocarditis, myocarditis, and pericarditis. So in that case, even if we don't get a positive preceding streptococcal infection clue, we can label the patient as having rheumatic heart disease. So these are exceptions. वरना आपको major और minor criteria के साथ preceding streptococcal infection का मिलना लाजमी है. Got the point? In cases of established rheumatic heart disease or prior rheumatic fever, acute rheumatic fever can be diagnosed based only on the presence of multiple minor criteria and evidence of preceding group A streptococcal pharyngitis. Say, for example, the patient is not having any of the major criteria, then presence of several minor criteria and with the preceding streptococcal infection again is diagnostic for rheumatic heart disease. थोड़ा सा इसको याद करना tough होता है, so let me revise it again for you. You should know the major criteria, minor criteria, and then there should be an preceding infection with the beta hemolytic group A streptococcal bacteria. ठीक है? Major criteria, you can remember it with the mnemonic of case. There are 5 major criteria and 6 minor criteria. अगर आपके मेजर क्राइटेरिया के अंदर पॉलीआर्थराइटिस है, then arthralgia is not considered to be in the minor criteria. If the patient is having carditis, then prolonged PR interval is not considered as a minor criteria. ठीक है, क्योंकि वो कार्डाइटिस की मैनिफेस्टेशन में ही आ जाएगा. तो अगर आप देखें पेशेंट में अगर 2 मेजर क्राइटेरिया हैं विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, दिस इज रूमेटिक हार्ट डिजीज. एक मेजर क्राइटेरिया है विद 2 माइनर क्राइटेरियाज विद प्रीसीडिंग इन्फेक्शन, देन रूमेटिक हार्ट डिजीज. अगर प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन नहीं है लेकिन पेशेंट हैज पैनकार्डाइटिस एंड सेंडेनहैम्स कोरिया, यू डायग्नोज एज rheumatic heart disease. अगर मेजर क्राइटेरिया कोई भी नहीं है but you have several minor criteria with positive ASO titer or preceding streptococcal infection, you diagnose it as a case of rheumatic heart disease. ये तकरीबन चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगेन, rheumatic fever causes a pancarditis involving the endocardium, myocardium, and pericardium to varying degrees. Its incidence declines with increasing age. As I said, rheumatic heart disease is more common in the age of 5 to 15 years of age. And अगर हम देखें तो 3 years of age में अगर 90% patients को carditis हो रहा है तो around 30% ये होगा in adolescents. It may manifest as breathlessness due to heart failure or pericardial effusion, palpitations or chest pain, usually due to pericarditis or pancarditis. What are the features of pericarditis? Basically, pericarditis के अंदर जो है patient present ही pain के साथ करता है. Characteristic इसका क्या होता है pericarditis का कि patient का pain it is worst while the patient lies down, और जब से ही पेशेंट जो है लीन फॉरवर्ड करता है तो पेशेंट का पेन सबसाइड हो जाता है. और एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलेगा? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन ड्रॉप मिलेगा. और इसके अलावा कुछ क्लासिकल ईसीजी चेंजेस होती हैं पेरिकार्डाइटिस की. आई विश कि मैं उसकी एक डायग्राम ऐड कर देती. पेरिकार्डाइटिस के अंदर भी आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलती है. देन हाउ डू यू डिफरेंशिएट इट कि वेदर दिस एसटी सेगमेंट एलिवेशन इज ड्यू टू स्टेम आई और दिस इज ड्यू टू पेरिकार्डाइटिस. इसमें जो है जो पेरिकार्डाइटिस की एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग. इसको हम स्माइल साइन भी बोलते हैं. जबकि एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई की अपवर्ड स्लोपिंग होती है उसको हम सैड साइन भी बोलते हैं. मैं इसकी डायग्राम आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा तो आपको इस तरह से याद रहेगा कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन की कैसी होती है और पेरिकार्डाइटिस की कैसी होती है.
एंड देन मर्मर्स जो है इन द फॉर्म ऑफ व्हेन एवर द वेल्व्स आर इन्वॉल्व्ड, तो आपको मर्मर्स भी इसमें मिलेंगे। ये जो है मैंने यहाँ पर एक मैट भी लिखा हुआ है, ये याद रखें कि जो वेल्व्यूलर इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज्यादा माइट्रल वेल्व की होती है। जो रोमैटिक हार्ट डिजीज है उसमें कॉमनेस्ट इन्वॉल्वमेंट कौन सी वेल्व की है? माइट्रल वेल्व की है। दिस इज एमसीक्यू पॉइंट। सेकेंड नंबर पे एओर्टिक वेल्व की है, थर्ड नंबर पे ट्राइकस्पिड वेल्व की है, एंड लास्टली जो है इट इज पल्मोनरी वेल्व, तो मैट पी। Other features include tachycardia, cardiac enlargement, and new। ये जो clinical features हैं ये आपको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका clinical scenario आता है, patients में जो symptoms होते हैं उनको इकट्ठा करके आपको patient की diagnosis बनानी होती है। तो जब आप देखेंगे कि patient heart failure के साथ भी आ सकता है, तो जब आप heart failure की बात करते हैं तो उसमें breathlessness भी होगी, ऑर्थोपनिया भी होगा, पीएनडी भी होगा, एग्जामिनेशन पे प्लूरल इफ्यूजन भी मिल सकती है, जेवीपी भी मिल सकती है, आपको जो है मरमर भी मिल सकता है। तो ये इसको एक रीडिंग हम दे देते हैं। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है इसका क्राइटेरिया, इसकी ट्रीटमेंट है, और जो हम प्रोफाइलेक्सिस किस तरीके से पेशेंट्स को देखते हैं। अ सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर, द कैरिकूम्स मर्मर, इज टिपिकली ड्यू टू वेल्व्युलाइटिस। ये चीज याद रखिए, जो माइट्रल स्टेनोसिस का मर्मर भी डायस्टोलिक मर्मर होता है, दैट इज मिड डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है, लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरिकूम्स मर्मर। एक मिड डायस्टोलिक मर्मर आपको एओर्टिक वेल्व इन्वॉल्वमेंट में मिलता है, उसको हम ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर बोलते हैं। तो ये जो आपके एमसीक्यूज हैं इससे रिलेटेड आ सकते हैं कि कैरिकूम मर्मर क्या है, ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर क्या है, और बेसिकली माइट्रल स्टेनोसिस का मर्मर भी मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है। तो जो कैरिकूम्स मर्मर है ये आपको वेल्व्युलाइटिस की वजह से मिलता है, तो देन इट इज टर्म्ड एज द कैरिकूम्स मर्मर with nodules forming on the mitral valve leaflet that is seen in the rheumatic heart disease. So you can find a mid-diastolic Caricombs murmur in the rheumatic heart disease as well. लेकिन अगर further when it is converted into a chronic rheumatic heart disease, so there it results in the complications of the valves, fibrosis of the valve, and results in the mitral stenosis. तो उस वक्त जो mid-diastolic murmur आपको मिलेगा that would be due to the mitral stenosis। एक acute presentation में एकदम से rheumatic heart disease valve को stenosed नहीं करती है, it is a complication which occurs with the passage of time। Aortic regurgitation occurs in 50% of the cases, ठीक है, but the tricuspid and pulmonary valves are rarely involved। All right, excuse me for a minute। All right, then we have pericarditis may cause chest pain, a pericardial friction drop, and precordial tenderness। Cardiac failure may be due to myocardial dysfunction और valvular regurgitation, और अगर myocarditis के साथ patient आता है ना उसकी बहुत poor prognosis होती है। Conduction defects including AV block sometimes occurs and may cause syncopal attacks। Then the criteria, arthritis. It is the commonest major manifestation. So it is again an MCQ that what is the commonest major manifestation? That is अर्थराइटिस। इसीलिए रोमैटिक पहले आता है इस डिजीज में। आप देखते हैं कि इट इज रोमैटिक हार्ट डिजीज। रोमैटिज्म इज समथिंग रिलेटेड टू द जॉइंट्स, सो अर्थराइटिस इज द कॉमनेस्ट मेजर मैनिफेस्टेशन इन रोमैटिक हार्ट डिजीज, एंड it occurs early when streptococcal antibody titers are high, and acute painful asymmetrical and migratory inflammation of the large joints typically affects the knees, ankles, elbows and wrist। पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी कि कुछ दिनों पहले मेरा एंकल ज्वाइंट की स्वेलिंग हुई हुई थी, एंड देन दैट ज्वाइंट स्वेलिंग है सबसाइडेड, वो अब ठीक हो गया, और अब जो है रिस्ट ज्वाइंट सूज गया है। कुछ दिनों बाद रिस्ट ज्वाइंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो दूसरा एल्बो ज्वाइंट इन्वॉल्व हो जाएगा। इसीलिए इसको माइग्रेटरी इन्फ्लेमेशन कहते हैं कि ये माइग्रेट करती रहती है, एक ही साथ
सारे जॉइंट्स आपको swollen नहीं मिलेंगे. It migrates from joint to joint in the patient. इसीलिए इसको हम migratory polyarthritis बोलते हैं. And it is asymmetrical. ये नहीं है कि अगर जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट मिलती है कि अगर राइट इन्वॉल्व है तो लेफ्ट भी इन्वॉल्व होगा, अगर राइट हैंड इन्वॉल्व है तो लेफ्ट हैंड के भी जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, दैट इज सिमेट्रिकल. लेकिन रोमैटिक हार्ट डिजीज की जो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है दैट इज एसिमेट्रिकल. Then we have skin lesions, that is erythema marginatum. मैंने आपको explain किया है marginatum इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके margins पे erythema होता है. Erythema means redness. It occurs in less than 5% of the patients, and the lesion starts as red macules that fade in the center but remain red at the edges and occur mainly on the trunk and proximal extremities but not on the face. It occurs on the trunk and proximal extremities. आपको shoulder joint पे नजर आएगा, back पे नजर आएगा, chest पे नजर आएगा, face को इन्वॉल्व नहीं करता है ये. ठीक है. The resulting red rings or margins may coalesce or overlap, and subcutaneous nodules occur in 5 to 7% of the patient. तो आपकी जो skin lesions हैं उसमें subcutaneous nodules और erythema marginatum दोनों ही 5% है. They are small, 0.5 to 2 centimeter. मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल रोमेटाइड नोड्यूल्स की तरह होते हैं. एंड दे आर पेनलेस. एरिथमा नोडोजम जो है ना वो पेनफुल होता है. ये वाले जो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हैं दे आर पेनलेस एंड आर बेस्ट फेल्ट ओवर द एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ द बोन और टेंडन, एंड दे टिपिकली अपीयर मोर देन 3 weeks after the onset of other manifestations and therefore help to confirm rather than make the diagnosis. ये जो आपके स्किन लेशंस है ना ये 3 weeks के बाद आते हैं टिपिकली. जब भी पेशेंट आर्ट्रल्गिया के साथ आता है, क्यूट प्रेजेंटेशन के साथ आता है, तो जब 3 weeks गुजर जाते हैं तब जो है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स अपीयर होते हैं पेशेंट में. जब बात सेंडेनहेम स्कोरिया की आती है ना, तो सेंडेनहेम स्कोरिया की प्रेजेंटेशन एटलीस्ट 3 months आफ्टर द एपिसोड ऑफ अक्यूट रूमेटिक फीवर होती है. इसी वजह से जब सेंडेनहेम स्कोरिया में आपको प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन नहीं मिलता, स्टिल इट इज डायग्नोस्टिक फॉर रूमेटिक हार्ट डिजीज. And when all the other signs may have disappeared, it occurs in up to 1/3 of the cases and is more common in females. This is again an MCQ point that Sydenham scoria is more common in females. पेशेंट इमोशनल लेबिलिटी के साथ प्रेजेंट करेगा, बड़ी ही एंशियस सी लुक होगी पेशेंट की. और Sydenham स्कोरिया में बेसिकली पर्पसलेस मूवमेंट्स होती हैं जिसको पेशेंट ट्राइज टू गिव देम अ पर्पस, कि वो हाथ ऊपर करके ना ऐसे उसका हाथ अचानक से ऊपर चला जाएगा तो वो अपने बालों में फेर लेगा कि आई वाज ट्राइंग टू सेट माय हेयर्स. और इसके अलावा जो है अगर हाथ उसका नीचे की तरफ चला गया तो उसने अपनी शर्ट सीधी कर ली कि आई एम ट्राइंग टू प्रॉपर माय शर्ट. तो वो जो है होती पर्पसलेस मूवमेंट्स है, लेकिन पेशेंट बड़ा ही एंशियस सा लुक होगा, उसका एंजाइटी वाला लुक होगा, और दैट पेशेंट इज एक्चुअली ट्राइज टू गिव पर्पस टू द पर्पसलेस मूवमेंट्स. ठीक है. These are involuntary. They are not in the control of the patient. Basically caudate nucleus जो basal ganglia में होता है ना उसमें एंटीबॉडीज जाके उसको डिस्ट्रॉय करती है. इसी वजह से जो है ये न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग पेशेंट में आती है. स्पीच may be explosive and halting. Spontaneous recovery usually occurs within a few months. मतलब Sydenham scoria है, इसके अंदर spontaneous recovery हो जाती है, and approximately 1/4 of the affected patients will go on to develop chronic rheumatic valve disease. What are the other features? Other systemic manifestations such as pleurisy, pleural effusion, and pneumonia may occur, but they are rare. आपको secondary bacterial infections हो सकते हैं, patient के pleurisy के साथ आ सकता है, और इसके अलावा pleural effusion may be a sign of जो है pleuritis भी हो सकता है, और secondary to heart failure भी हो सकता है. Investigations जो है इसकी, यहाँ पर हम इसका टेबल पढ़ लेते हैं. टेबल में बहुत अच्छी दीनी है. इन्वेस्टिगेशंस में सीबीसी आप कराएंगे. सबसे पहले सीबीसी में क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगी, रेस्ड ईएसआर आपको मिलेगा, और इसके अलावा रेस्ड सी रिएक्टिव प्रोटीन मिलेगी. ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन करवाने की इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि इससे हम डिजीज की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं. एंड देन देयर इज एविडेंस ऑफ प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. ये आपको कैसे पता चलेगा, या तो आप थ्रोट स्वाब कल्चर लें, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई. आप थ्रोट स्वाब फैमिली मेंबर्स का या कॉन्टैक्ट्स का भी ले सकते हैं, या तो फिर आप एएसओ टाइटर कराएंगे. तो लेवल ऑफ ग्रेटर देन 200 यूनिट्स इन एडल्ट्स एंड लेवल ऑफ ग्रेटर देन 300 यूनिट्स इन चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एएसओ टाइटर.
पॉजिटिव एएसओ एंटीबॉडीज बेसिकली। एविडेंस ऑफ कार्डाइटिस, ये टाइटर्स जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टाइटर्स जो आपके एंटीबॉडीज होता है ना, इनका जो ये वैल्यूज होती हैं पहले कम होती हैं, उसके बाद थोड़ा और इंक्रीज होती है, फिर और इंक्रीज होती हैं। तो ये जो है इनके टाइटर्स जो है इनका भी राइज आपको देखना होता है। इफ दिस टाइटर इज मोर देन 200 यूनिट्स in adults, it is considered to be positive, and when this titer is more than 300 units in children, it is considered to be positive ASO titer or positive ASO antibodies. Titers होते ही एंटीबॉडीज हैं। देयर इज एविडेंस ऑफ कार्डाइटिस। तो कार्डाइटिस का एविडेंस आपको कैसे मिलेगा? चेस्ट एक्सरे आप कराएंगे, उसमें आपको वाइडेंट मीडियास्टाइनम मिल सकता है, कार्डियोमेगाली मिल सकती है, स्पेशली अगर मायोकार्डाइटिस के साथ है पेशेंट, हार्ट फेलियर के साथ है, और पल्मोनरी कंजेस्शन जो आपको बटरफ्लाई साइन हार्ट फेलियर में मिलता है, अपवर्ड डाइवर्जेंस ऑफ द पल्मोनरी वेसल्स, आपको कर्लीज बीज लाइन मिल सकती है। ईसीजी में आपको हार्ट ब्लॉक मिलेगा, ठीक है, एंड फीचर्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस मिलेंगे, यानी कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिल सकती है, टी वेव इन्वर्जन मिल सकता है, एंड इसके अलावा रिडक्शन इन क्यूआरएस वोल्टेजेस भी मिल सकता है। अगर आपको रिडक्शन इन क्यूआरएस वोल्टेजेस मिल रहा है तो मतलब कि पेरिकार्डाइटिस के साथ कोई पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी पेशेंट डेवलप कर लिए, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे तो उसके अंदर आपको कार्डियक डायलिटेशन एंड वेल्व एब्नॉर्मैलिटीज मिलेंगी। तो बेस लाइन से स्टार्ट करके आपने एएसओ टाइटर लाजमी एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है रोमैटिक हार्ट डिजीज में, और इसके अलावा चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट से रिलेटेड ये तीनों इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट है। Now we come towards the treatment of the rheumatic heart disease. The first treatment that you advise the patient is bed rest, ठीक है। bed rest important है क्योंकि एक तो वो joint pain को भी कम करेगा और ये cardiac workload को भी कम करेगा। The duration should be guided by symptoms along with temperature. आप कितनी देर तक पेशेंट को बेड रेस्ट करवाएंगे वो क्लिनिकली उसकी बेटरमेंट पे डिपेंड करता है, उसके ल्यूकोसाइट काउंट पे डिपेंड करता है, उसके ईएसआर पे डिपेंड करता है, एंड दिस शुड बी कंटिन्यूड अंटिल दीज हैव सेटल्स। मतलब पेशेंट का डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल हो गया है, देन यू कैन एडवाइस कि हाँ अभी आप जो है एक्टिविटी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी कर सकते हैं, ईएसआर उसका नॉर्मल हो गया है और टेम्परेचर भी सबसाइड हो गया है। पेशेंट्स कैन देन रिटर्न टू नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, बट स्ट्रीनस एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड इन दोज हु हैव हैड कार्डाइटिस। जिनको कार्डाइटिस हुआ था तो उनमें स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस फॉर सर्टेन टाइम पीरियड अवॉइड की जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक फेलियर, अगर पेशेंट कार्डियक फेलियर के साथ है तो वो सारी एलएमएनओपी वाली जो ट्रीटमेंट आपको कार्डियक फेलियर की बताइए कि आपने ऑक्सीजन लगाना है पेशेंट को, आपने फ्यूरोसमाइड देना है पेशेंट को, आपने मॉर्फिन देना है, नाइट्रेट्स देना है, पेशेंट की प्रॉपर पोजीशन बनानी है, ठीक है। तो वो हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट आप अकॉर्डिंगली करेंगे जिस तरह से पेशेंट आएगा। If heart failure does not respond to the medical treatment, you can go for the valve replacement. It may be necessary and is often associated with dramatic decline in rheumatic activity. Occasionally, AV block may occur. तो AV block की क्या treatment है? First degree है, second degree है, तो first degree heart block और जो second degree heart block का type 1 है, जो जिसके अंदर Wenckebach phenomena होता है, उसके अंदर आप जो है usually they are not treated, लेकिन अगर patient symptomatic हो जाए तो फिर आप transient pacemaker लगा सकते हैं। और जो आपकी सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का जो टाइप 2 है और इसके अलावा थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की ट्रीटमेंट इज पेसमेकर। Then the antibiotic treatment. What is the antibiotic of choice in rheumatic heart disease? Always remember this is benzathine, benzyl, penicillin. अब जो है इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को कि ये जो है पेनिसिलिन जी भी है, एक पेनिसिलिन वी भी है, फिर बेंजाइल पेनिसिलिन है, बेंजाथीन पेनिसिलिन है, तो ये आप कौन सी पेनिसिलिन को सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि ये जो ऑप्शंस देते हैं एमसीक्यूज में उसमें अक्सर इन्हीं पेनिसिलिन में कंफ्यूज किया हुआ होता है। एक चीज याद रखें कि जो बेंजाथीन बेंजाइल पेनिसिलिन है दैट इज गिवन इन द स्ट्रेंथ ऑफ 1.2 मिलियन यूनिट स्टैट सिंगल डोज। अगर आप ओरल जो है पेनिसिलिन दे रहे हैं, फेनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन दे रहे हैं, तो दैट इज 250 मिलीग्राम 4 टाइम्स डेली फॉर 10 डेज, लेकिन इसकी एफिकेसी इतनी अच्छी नहीं है, एंड दिस इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ द पेनिसिलिन इज एक्चुअली प्रेफर्ड। सो अब पेनिसिलिन की अपनी कंफ्यूजन जो है दूर करें, इसको बेशक आप अपने पास लिख लें। जो पेनिसिलिन जी होती है वो इंजेक्टेबल होती है, और जो पेनिसिलिन 5 हम लिखते हैं ना वो ओरल फॉर्म होती है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब जो पेनिसिलिन जी जो इंजेक्टेबल पेनिसिलिन हमारे पास होती हैं बेसिकली दीज आर बेंजाइल पेनिसिलिन। अब ये जो बेंजाइल पेनिसिलिन है, इन बेंजाइल पेनिसिलिन की ये प्रिपरेशंस है, बेंजाथीन पेनिसिलिन,
और इसके अलावा जो है पेनिसिलिन जी सोडियम, प्रोकेन पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी पोटेशियम, ठीक है। सो सोडियम के साथ भी है, पोटेशियम के साथ भी है, और एक आपका प्रोकेन पेनिसिलिन जी भी है। इसमें जो बेंजाइल पेनिसिलिन की ये जो 4 फॉर्मुलेशंस हैं, इसमें बेंजाथीन पेनिसिलिन और प्रोकेन पेनिसिलिन IM प्रिपरेशन है. So when you are treating a patient with the having a rheumatic heart disease, so you have an IM preparation, so you go for benzyl benzathine penicillin. Got it? Benzathine benzyl penicillin या benzyl benzathine penicillin. तो benzyl penicillin basically injectable form है, just that is penicillin G, और benzathine penicillin जो है उसकी वो फॉर्म है जो कि IM दी जाती है. एक प्रोकेन benzyl penicillin भी है. प्रोकेन benzyl penicillin में क्या होता है, उसमें प्रोकेन एज एन एनेस्थेटिक यूज होता है, क्योंकि जो IM प्रिपरेशन हम पेनिसिलिन की देते हैं दैट इज वेरी पेनफुल. IM इंजेक्शन वैसे भी बहुत पेनफुल होते हैं, तो उस पेन को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए वी एड प्रोकेन इन दैट benzyl penicillin, तो दैट इन दैट केस दैट इज नोन एज प्रोकेन benzyl penicillin. ठीक है, तो ये बेंजिलिन की प्रिपरेशंस हो गई. अच्छा, किसी पेशेंट को अगर बेंजाइल पेनिसिलिन से या पेनिसिलिन से एलर्जी है, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन. व्हाट इज द डोज ऑफ एरिथ्रोमाइसिन इन रूमेटिक हार्ट डिजीज? इट इज 40 mg पर केजी पर डे. मतलब 40 mg पर केजी जितनी उसकी टोटल डोज आ रही है वो पर डे आप देंगे उसको, और उसको जो है आप डिवाइड कर देंगे इनटू 2 डोजेस. इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन के अलावा आप सेफेलोस्पोरिन भी यूज करते हैं. एंड ये बात इन्होंने बताई हुई है कि जो आप लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस देते हैं विद पेनिसिलिन, इट शुड बी गिवन विद ओरल फेनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन 250 मिलीग्राम ट्वाइस डेली. यहाँ पर आप देख लें कि जो ओरल डोज है दैट इज 250 मिलीग्राम 4 टाइम्स डेली, लेकिन जब आप प्रोफाइलेक्सिस दे रहे हैं तो डोज इज 250 मिलीग्राम ट्वाइस डेली. और एज बेंजाथीन पेनिसाइल पेनिसिलिन इट इज गिवन 1.2 मिलियन यूनिट IM मंथली. आपने बहुत सारे माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट्स देखे होंगे जिनको मंथली गोश्त में जो इंजेक्शंस लगते हैं, दीज आर बेसिकली दीज बेंजाथीन बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है, उनको मंथली लगते हैं. अब क्यों लगते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें. इफ एडहेरेंस इज इन डाउट, sulfadiazine or erythromycin may be used if the patient is allergic to penicillin. And sulfonamides prevent infection but are not effective in the eradication of group A streptococci. आपके जो sulfonamides हैं, they are not in the treatment, लेकिन prevention में आप use कर सकते हैं. In those with residual heart disease, prophylaxis should continue until 10 years after the last episode or 40 years of age, whichever is later. And while long-term antibiotic prophylaxis prevents further attacks of acute rheumatic fever, it does not protect against infective endocarditis. मतलब जो आप prolonged prophylaxis patient को दे रहे हैं वो rheumatic fever को तो दोबारा होने से prevent करेगी, लेकिन वो infective endocarditis की prevention नहीं है. ठीक है, पेशेंट को स्टिल अगर कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज होती है, इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो वो पेशेंट का वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा. एस्पिरिन जो है इसका एक डायग्नोस्टिक पॉइंट भी होता है, बड़ा ही क्लिनिकली पेशेंट को इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है एस्पिरिन के साथ जो इसका आर्थ्रल्गिया है. तो एस्पिरिन भी जो है इट इज अ ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन द रूमेटिक हार्ट डिजीज. तो इट यूजुअली रिलीव्स द सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस रैपिडली and responses within 24 hours, and it helps to confirm the diagnosis. Patient को जैसे ही आपने aspirin दी उसको एकदम से response मिलेगा. So what is the dose of penicillin, this aspirin in adults? It is 100 milligram per kg per day, and and it may be needed up to the limits of tolerance of a maximum of 8 grams per day. जबकि बच्चों में it can the dose is lower. और इसके अलावा जब आप aspirin देते हैं it is divided into 6 डोजेस, यानी कि आप 4 आवरली देते हैं. जितना 100 mg पर केजी पर डे उसकी डोज बन रही है उसको आप 6 से डिवाइड कर देते हैं और हर 4 आवर्स के बाद उतनी उतनी एस्पिरिन उसको देते हैं. एस्पिरिन की ये साइड इफेक्ट्स बड़े कॉमन है. नोजिया हो सकता है, टिनाइटिस है एंड डेफनेस है, वॉमिटिंग, टैकीपीनिया एंड एसिडोसिस आर मोर सीरियस. एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी की भी जो है सिनेरियोज उसमें बहुत आते हैं आपके एमसीक्यूज में. वो इंशाल्लाह जब हम पॉइजनिंग पढ़ेंगे देन वी विल डू दैट. एस्पिरिन शुड बी कंटिन्यूड until the ESR has fallen and is then gradually tailed off.
स्टीरॉइड्स की क्या इंडिकेशन है पेशेंट्स में विद द रोमेटिक हार्ट डिजीज? स्टीरॉइड्स जो है इसकी डोज तकरीबन 40 to 60 मिलीग्राम जो है हम देते हैं, यानी कि 1 to 2 mg पर केजी के हिसाब से हम देते हैं, और ओवर द 2 वीक्स टैपरिंग में देते हैं और 2 वीक्स तक सिर्फ देते हैं। एंड इसमें जो है इंडिकेशंस क्या है इसकी, अगर कार्डाइटिस के साथ है और सिवियर अर्थराइटिस के साथ पेशेंट है तो हम स्टीरॉइड्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट का जो अर्थराइटिस है विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, पहले आपने एस्पिरिन स्टार्ट किया लेकिन उसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो देन यू कैन ऐड स्टीरॉइड्स। क्रॉनिक रोमैटिक हार्ट डिजीज, अच्छा अब जो है इसकी प्रिवेंशन की बात आ जाती है कि रोमैटिक हार्ट डिजीज में हम करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी प्रिवेंशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी प्रिवेंशन? जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसमें यह है कि डिजीज अभी तक नहीं हुई, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप जो प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। रोमैटिक हार्ट डिजीज जब एक दफा हो गई, अब उसके अंदर जब आप प्रोफाइलैक्टिकली बेंजाइल पेनिसिलिन दे रहे हैं, बेंजाथीन बेंजाइल पेनिसिलिन दे रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, दैट इज नॉट प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये हम सेकेंडरी प्रिवेंशन बेसिकली करते हैं ताकि पेशेंट को क्रॉनिक रोमैटिक हार्ट डिजीज ना हो। अगर पेशेंट को एक दफा रोमैटिक हार्ट डिजीज हो जाती है लेकिन उस वक्त जो है पेशेंट को कार्डाइटिस नहीं हुआ था, तो हम जो है तकरीबन 5 ईयर्स के लिए बेंजाइल पेनिसिलिन आईएम जो है रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। अगर जो है पेशेंट को कार्डाइटिस हुआ था और तो तब जो है आपने, लेकिन कोई वेल्वुलर डिजीज नहीं है, ठीक है, कार्डाइटिस हुआ है उसको लेकिन कोई रेजिडुअल वेल्वुलर डिजीज नहीं है, तो आपने 10 ईयर्स तक पेशेंट को देनी है। और इसके अलावा अगर पेशेंट को कार्डाइटिस के साथ साथ वेल्वुलर हार्ट डिजीज भी है तो आप 10 ईयर्स या बाय द एज ऑफ 41 ईयर्स तक पेशेंट को बेंजाइल पेनिसिलिन लगाते हैं मंथली, विच एवर इज लॉन्गर। और जो आपकी सेकेंडरी प्रिवेंशन इनिशियल है जिसमें पेशेंट को रोमैटिक हार्ट डिजीज होती है, जिसमें आप 5 ईयर्स तक देते हैं, उसमें या तो 5 ईयर्स तक देंगे या 21 ईयर्स ऑफ एज तक देंगे, क्योंकि उसके बाद जो है रोमैटिक हार्ट डिजीज का जो इंसिडेंस है वो कम हो जाता है। देन क्रॉनिक रोमैटिक हार्ट डिजीज के अंदर it develops in at least half of those affected by rheumatic fever with carditis and 2/3 of cases occur in women. इसीलिए आपने देखा होगा कि माइट्रल स्टेनोसिस ज्यादातर वुमेन के अंदर ही कॉमन होती है। Some episodes of rheumatic fever they passed unrecognized and it is possible to elicit a history of rheumatic fever or chorea in only about half of all the patients. ज्यादातर पेशेंट जो एमएस के आपके पास आते हैं उसके अंदर कोई भी हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं होती ऑफ rheumatic हार्ट डिजीज। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू पॉइंट है जो मैंने आपको मैट पी के नाम से मेमोनिक में मैंने कहा कि आप याद रखें, सबसे पहले माइट्रल वाल्व, उसके बाद एओर्टिक वाल्व, उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व और उसके बाद जो है पल्मोनरी वाल्व इन्वॉल्व होता है। अच्छा, आपके सारे वाल्व ही तकरीबन ट्राइकस्पिड होते हैं सिवाय माइट्रल वाल्व के, ठीक है ना। Isolated mitral stenosis accounts for about 25% of all cases, और इसी वजह से जैसे ही रोमैटिक फीवर दिया है उसके फौरन बाद डेविडसन में जो टॉपिक है दैट इज mitral stenosis। ठीक है, तो mitral stenosis की कॉज में रोमैटिक हार्ट डिजीज को हमेशा याद रखें। एंड पैथोजेनेसिस की क्या होती है, द मेन पैथोलॉजिकल प्रोसेस इन क्रॉनिक रोमैटिक हार्ट डिजीज इज प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस, और इसी वजह से जो क्रॉनिक रोमैटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट आपको वेल्व्यूलर स्टेनोसिस वगैरह के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, or skin and heart valves are predominantly affected, but involvement of the pericardium myocardium also occurs, लेकिन इनकी prognosis बड़ी poor होती है। अगर एक दफा मायोकार्डाइटिस और ये चीजें पेशेंट ने डेवलप कर ली, हार्ट फेलियर और कंडक्शन डिसऑर्डर्स होंगे और पेशेंट की जो है ना prognosis भी poor हो जाती है। Fusion of the mitral valve measures and shortening of the chordae tendina may lead to mitral stenosis with or without regurgitation। ठीक है, मैंने आपको यही बोला कि स्टेनोसिस आपका क्रॉनिक रोमैटिक हार्ट डिजीज का feature है, and similar changes in the aortic and tricuspid valve produces distortion and rigidity of the cusp, leading to stenosis and regurgitation. Once a valve has been damaged, the altered hemodynamic stresses perpetuate and extend the damage, even the absence of the continuing rheumatic process. मतलब एक दफा आपका फाइब्रोसिस का प्रोसेस जब इनिशिएट हो गया, उसके बाद अब अगर कोई persistent आपको डिजीज नहीं भी है तब भी जो है ये डैमेज कंटिन्यूड होता है। Now this is a picture of arrhythmia marginatum. आप इसका arrhythmia देखें, बिल्कुल margins के ऊपर है, इसीलिए it is known as arrhythmia marginatum, और ये shoulder के ऊपर है patient के। Now again, any one of you should read the scenario and answer this so that we end today's topic. Anyone? All right, we have a newcomer, Adnan.
Read the scenario and answer. It's okay to be wrong. Read the scenario and answer. All right, read any one of you. Read it and answer. 12 year. Gigi. Am I audible? Gigi, yes, you are audible. Okay. A 12-year-old patient presents with fever, giant pain, and a history of sore throat. On examination, you note erythema marginatum and subcutaneous nodules. The Jones criteria are applied to assess the diagnosis. Which of the following major criteria in conjunction with supporting evidence is necessary to diagnose rheumatic fever in this patient? Option A, prolonged PR interval on ECG. Option B, Elevated. Elevated streptolysin. Yes, ma'am. Elevated streptolysin or ASO titer. Good. Option C, sorry. J. Positive blood culture. Option D, elevated C-reactive CRP levels. तो क्या होना चाहिए इसमें ऑप्शन? अरिथमा मार्जिनेटम है उसको, ठीक है। अरिथमा मार्जिनेटम मेजर क्राइटेरिया में आता है। सबकुटेनियस नोड्यूल्स है उसको, सबकुटेनियस नोड्यूल भी मेजर क्राइटेरिया में आता है। तो दो मेजर क्राइटेरिया तो उसके हो गए। अब इन दो मेजर क्राइटेरिया के साथ इसमें क्या उसके होना चाहिए उसमें, ताकि आप उसको रोमैटिक हार्ट डिजीज लेबल कर सकें? ऑप्शन ए मैम। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, तो ये तो दो मेजर के साथ एक माइनर आ जाएगा, तब भी आपका वो कंप्लीट नहीं होगा। यस मैम, वो तो दिस इज एलिवेटेड एएसओ टाइटर, ठीक है। हो जाएगा। हाँ, ये मैंने आपको बताया ना कि आपके दो मेजर क्राइटेरियाज हैं और उसके साथ आपका प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, या तो आपका एक मेजर क्राइटेरिया है और दो माइनर है, लेकिन उसके साथ भी प्रीसीडिंग एएसओ टाइटर है। प्रीसीडिंग एएसओ टाइटर सिर्फ उस वक्त क्राइटेरिया से निकलता है अगर पेशेंट जो है पेनकार्डाइटिस के साथ हो या सेंडेनहेम्स कोरिया के साथ हो। अदरवाइज एलिवेटेड एएसओ टाइटर आपको मेजर माइनर क्राइटेरियाज के साथ चाहिए। दो मेजर क्राइटेरियाज भी आ रहे हैं तब भी आपको एएसओ टाइटर चाहिए। आपके पास अगर एक मेजर आ रहा है, दो माइनर आ रहे हैं, तब भी आपको एएसओ टाइटर चाहिए कंफर्मेशन के लिए। और अगर 5 के 5 माइनर क्राइटेरियाज आ रहे हैं या 6 के 6 माइनर क्राइटेरियाज आ रहे हैं, तब भी आपको कंफर्मेशन के लिए एएसओ टाइटर चाहिए। एक्सेप्शन इज ओनली सेंडेनहेम्स कोरिया एंड पेनकार्डाइटिस। Got the point? All right, thank you so very much. That's the end of today's class. And it's a task for you people. आप लोगों ने मुझे जेरिश हेक्सेमर रिएक्शन जो है ये पेनिसिलिन के साथ होता है, इसके बारे में कोई भी एक जो है पोस्ट करेगा ग्रुप में। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।